Welcome back everyone to the weekly webinar cum training session hosted by Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I Anagha extend a warm welcome to all the attendees. So today we are going to explore the Tally Prime feature, that is GST reports. But before moving ahead into our main topics, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we do have in working in the various aspects of softwares, which include sales, services, solutions, implementations, and developments. And our primary focus includes Tally Prime, SAP Business One, Bittrex 24, and Skill India, as we are dedicatedly providing the software solution across all these platforms. So now we'll welcome our speakers. The speakers are ready for the session. So Payal, are you here? Yes, ma'am. Okay. And Raju, are you here? Yes, ma'am. Okay. And Mr. Bhagwati Dandaria, sir, are you here? Okay. So Payal and Raju, I request to start with your presentation. Yes, ma'am. Ma'am, my screen is visible. PPT is not visible. Now it's visible. Okay. Hello, good evening, everyone. Myself, Payal Mistry, representing of behalf of Rajlakshmi Solution, on behalf of management and entire team of Rajlakshmi Solutions. I would like to welcome all the participants and moving here. So today topic is the GST reports in Tally Prime. What is the GST? The Goods and Service Tax is the new unified multi-stage and consumption tax levy on manufacture, sales and consumptions of goods and services at the national level to replace all the existing national and state tax systems like VAT, service tax, excise duties, etc. It is unexpected to remove the cascading effect of a tax on tax, which is prevalent presently. It is applicable to you if you are into manufacturing, trade, e-commerce of services. So let's see. So जीएसटी एग्जैक्टली होता क्या है? जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 2017 से जीएसटी हमें एप्लीकेबल हो गया था. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है. जीएसटी थ्रू हमें इंट्रोड्यूस किया गया था. लाइक पहले एक चीज के लिए अलग अलग स्टेट वाइज पे करना होता है, जिससे हमें एक्साइज ड्यूटी पे करना है, वेट पे करना है, या फिर सर्विस टैक्स पे करना है. अलग अलग चीज अलग अलग टैक्स पे करना था. लाइक टैक्स ऑन टैक्स भी हमें पे करना पड़ता था. लेकिन जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद हमें सिंगल टैक्स पे कर रहे हैं. कंप्लीटली एक बेनिफिट है जीएसटी का. तो बेनिफिट है. सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. What is a GST return? A return is a document containing details of income which a taxpayer is required, which the tax administrative authorities. This is used by the tax authorities to calculate tax liabilities. तो जीएसटी रिटर्न हमें कब पे करना है और हमें जीएसटी रिटर्न किस पर्सन के लिए एलिजिबल होता है? जो पर्सन जीएसटी रजिस्टर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसे कि जीएसटी रिटर्न फाइल हमें मैंडेटरी होता है. टैक्स रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि लाइक टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन के लिए टैक्स के भी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो टैक्स डिपार्टमेंट में हमारे सबमिट करना होती है. उससे ही हमें टैक्स रिटर्न कहते हैं, जिससे हम जीएसटी में देख के क्लेम कर जीएसटी में देख के ही हम जिसके भी सेल्स कर सकते हैं या परचेस कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है, लाइक हमें गुड्स सर्विस सेल्स किया है या उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है, उसे ही हम जीएसटी रिटर्न्स कहते हैं. जीएसटी रिटर्न्स इंक्लूडिंग, तो जीएसटी रिटर्न्स करते टाइम हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे दिखाया है. जैसे कि सेल्स, परचेस, आउटपुट जीएसटी ऑन सेल्स, इनपुट्स क्रेडिट जीएसटी पेड ऑन परचेस, टू फाइल जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी कम्प्लीमेंट सेल्स एंड परचेस इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड. तो हमें कितना
जीएसटी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाए गए वो हमें हमारे कितने परसेंट जिस पे हमने जीएसटी पेड किया है वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिक्वायर रहती है। और हमें रिक्वायर होता है कि हमारे रिटर्न्स के टाइम पे टाइम के लिए हमने परचेज सेल्स इनवॉइस होता है वो हमें completely रिक्वायर रहता है। Types of GST. So what are the types of GST returns? तो GSTR1, GSTR2 and GSTR3 भी मंथली रिपोर्ट जो फाइल करते हैं उसे कम्प्लीटली एक इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। GSTR1. So GSTR1 is a monthly or quarterly returns that should be filled by every registered GST taxpayer, except a few as a given in further sections. Its contain details of all outward supplies. Example, sales. Taxable outward interstate supplies to unregistered persons where the invoice value is more than rupees 2.5 lakhs. तो GSTR1 में हमें क्या कितना टैक्स क्या इंक्लूडिंग होता है यहाँ क्या इंक्लूडिंग होता है यहाँ पार्टिसिपेंट GSTR में बताया गया है। उससे हमें मंथली एंड क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। GSTR1 में हमारे कंप्लीटली सेल्स कैलकुलेट होता है और हमारा कितना गुड्स एंड सर्विस सेल्स किया है जिसके ऊपर हमने कितना टैक्स पे किया है वो हम कैलकुलेट। GSTR1 में हमें B2B सेल्स किया है या B2C किया है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें GSTR1 में हमें प्रोवाइड किया हो जाती है। GSTR2. GSTR2 is a monthly return that allows the taxpayers to declare and summarize the details of inward purchases of taxable goods and our services. However, the GSTR2 form is currently suspended since September 2017 to the CGST rules. तो GSTR2 हमारा GSTR2 जो होता है वो हमारा परचेज होता है। हमने कितना गुड्स सर्विस परचेज किया है और उसमें हमने कितना टैक्स पे किया है, कितना हमारा गुड्स परचेज गुड्स परचेज हुआ है या कितना हमने टैक्स पे कर रहे हैं, ये हमारे GSTR2 में हम कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देनी होती है डिपार्टमेंट को। GSTR3B. The GSTR3B is a consolidated summary returns of inward and outward suppliers that the government of India has introduced as a way to relax the requirements for businesses that have a recently translated of GST. तो जैसे कि GSTR1 में हमने देखा कि सेल्स का हमारा टैक्सेस जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज सेल्स किया है उसे ही हम प्रॉपर रिपोर्ट मेंशन करते हैं या सबमिट करते हैं। GSTR2 में जब भी हमारा परचेसेस किया है या उसके ऊपर जो भी टैक्स पे किया है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। डायरेक्ट GSTR3 जो होता है वो इन टैक्स कैलकुलेट समरीज होता है। लाइक दोनों हमें समरीज वो दिखा रहे हैं कि GSTR1 में या 2 में क्या क्या हमने वहाँ पे किया है, क्या क्या कितना टैक्स पे किया है या सेल्स ओपन परचेस का ऊपर पर्टिकुलर उसे रिपोर्ट पे GSTR3B में कंबाइंड होता है। B2B में हमने कितना इनवॉइस किया है, B2B में सेल्स किया है, बिजनेस टू बिजनेस कितना सेल्स किया है जो रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है। और हमने B2C में अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, लाइक जो पर्सन GSTR1 में रजिस्टर नहीं है। B2C में हमने कितने इनवॉइस कितने हमने सेल्स परचेस किया है वो यहाँ पे ये रिपोर्ट में दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC. A significant change the GST introduced was the maximum of input credit. ITC is the heart and soul of GST. Input credit measurement is available to you when you are covered under the GST Act, which means if you a manufacturer, suppliers, agent, e-commerce operator
agreement or any of the person mentioned here. Registration under GST, you are eligible to claim input credit for tax paid by you on your purchases. In the sections, we will give you a thoughts understanding of ITC as a maxims, including its calculations, eligibility, and the terminated of expansions scenarios in which ITC has already been aware. जैसे कि हमने देखा GSTR 1, 2 and 3 में ITC क्या होता है, कि हमने देखने के लिए ITC में हमें जितने भी परचेस कर रहे हैं या जितने भी हम लोग पर्सन एलिजिबल होते हैं, जिसने GST रजिस्ट्रेशन पर्सन है, जैसे कि एलिजिबल होते हैं आईटीसी में, हमने जितने भी पर्सन के लिए जितने भी परचेस किए हैं या जितने भी गुड्स एंड सर्विस किए हैं, उसके ऊपर हमें टैक्स कितना पे किया है और वो टैक्स हमें करते हैं तब क्लेम कितना कर रहा है, वो यहाँ पे हम लोग को आईटीसी में दिखाना पड़ता है. सो थैंक यू माय साइड. राजू सर, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू पायल मैम. माई सेल्फ राजू बाबा साहब कामरे. आज हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में जीएसटी रिपोर्ट्स. तो हम जीएसटी रिपोर्ट्स हैं वो दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. Raju, please share your screen. ओके मैम. मैम स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, हो रही है. ओके. हम जीएसटी रिपोर्ट्स दो तरीके से देख सकते हैं. उसमें पहला है हम गो टू मेन्यू का यूज़ करके जीएसटी रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं. इसमें हम जीएसटी सर्च करके जितने भी जीएसटी रिलेटेड रिपोर्ट्स रहते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं. और सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके हम जीएसटी रिपोर्ट्स में जाके हम जितने भी जीएसटी रिपोर्ट्स है वो एक्सेस कर सकते हैं. उसमें पहला है ट्रैक जीएसटी रिटर्न्स एक्टिविटी. तो जीएसटी रिटर्न्स एक्टिविटी में जैसे हम इंटर करते हैं तो जितने भी जीएसटी रिपोर्ट्स रहते हैं उसका पूरा डिटेल इधर शो हो जाता है. उसमें हम जितने भी रिकन्सलेशन है, एक्सपोर्ट है, साइन है या फिर एक्सपोर्ट किया है, वो सब रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो जाते हैं. दूसरा है जीएसटी R1. जीएसटी R1 जैसे हम रिपोर्ट ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड टॉप में हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता है और राइट साइड में जो पीरियड है वो दिखता है. हम यहाँ से पीरियड भी मेंशन कर सकते हैं. जिस पीरियड का हमको जीएसटी R1 रिपोर्ट देखना है वो हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे. दो तरीके से जीएसटी फाइल करते हैं. फर्स्ट है मंथली और सेकंड है क्वार्टरली. तो हम इसके सेटिंग्स जो है वो F11 में जाके जो जीएसटी रिपोर्ट इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहता है उसको इनेबल करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम पीरियड के साथ हमें चाहिए, जैसे कि मंथली या फिर क्वार्टरली. अभी मैंने क्वार्टरली सिलेक्ट किया है तो जो पीरियड है वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा. जो भी डेट डालेंगे उस अकॉर्डिंग. और जितना भी वाउचर रहेगा, वाउचर का जितने भी वो मंथ में वाउचर क्रिएट हुए हैं तो वो सब टोटल वाउचर्स के अंडर इधर दिखाई देंगे. उसमें इंक्लूडिंग रिटर्न्स में 6 वाउचर है, रेडी फॉर एक्सपोर्ट 6 है, नॉट एक्सपोर्टेड इधर 6 दिख रहा है. और जो अनसर्टन ट्रांजेक्शन रहते हैं जिसमें करेक्शन नीडेड रहता है, मतलब जीएसटी मिस्टेक्स है, वो इधर शो हो जाएंगे. दूसरा है B2B इनवॉइसेस. B2B इनवॉइसेस में हमें जो हमने बिजनेस टू बिजनेस जितने भी इनवॉइस क्रिएट किए हैं, सेल किए हैं, वो सब इधर शो हो जाएगा. जैसे एंटर करते हैं तो जिस पार्टी को हमने सेल किया है वो उसका डिटेल हमें इधर दिख जाएगा. जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे उसी तरीके से हमको वो जो जिस पार्टी को आपने सेल किया है वो इधर शो हो जाएगा. सेकेंड है B2C. B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर. जो भी बिजनेस टू कंज्यूमर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो B2C के अंडर आते हैं. तीसरा है एक्सपोर्ट इनवॉइस. जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट जिनका भी एक्सपोर्ट बिजनेस है तो उनके जो जितने भी इनवॉइसेस है वो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में आते हैं. और इधर क्रेडिट और डेबिट नोट में जो भी हम क्रेडिट डेबिट नोट इशू करते हैं वो इधर शो हो जाएगा. और आगे है B2C इनवॉइसेस. B2C में जितने भी बिजनेस टू कंज्यूमर रहते हैं, जितने स्मॉल इंटरस्टेट रहता है, वो हमें इधर शो हो जाएंगे. जैसे हम इधर इंटर करते हैं तो हमें वो
डिटेल में पता चलता है। जैसे कि हमें महाराष्ट्र में सेल किया है कंज्यूमर को, तो इधर हमें शो हो जाएगा ये। तीसरा लास्ट है नील रेटेड इनवॉइसेस। इसमें जितने भी जो आइटम्स है जो नील रेटेड है वो इधर शो हो जाता है। और रिपोर्ट में जैसे कि हम नेचर व्यू जैसे करते हैं, तो इधर हमें नेचर व्यू में आउटवर्ड सप्लाई है, लोकल में लोकल सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई, वो सब इधर शो हो जाता है। जैसे कि टैक्सेबल में इतना टैक्सेबल हम इनवॉइस हमने क्रिएट किया है, नील रेटेड में नील रेटेड इनवॉइसेस आ जाते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई में टैक्सेबल ये इतना सप्लाई है, और एक्सपोर्ट में टैक्सेबल ये सप्लाई है, इतना सप्लाई है। ये हमें नेचर व्यू की मदद से हमें डिटेल में पता चलता है। जैसे हम रिटर्न व्यू में देखते हैं, तो इस तरीके से हमको GST-R1 रिपोर्ट शो हो जाता है। नेक्स्ट है GST-R3B। GST-R3B में सेल और परचेस ये दोनों रिपोर्ट्स कंबाइन होती है। तो हम GST-R3B की मदद से सेल्स और परचेस का पूरा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। और इधर हमें ITC कितना क्लेम करना है वो भी इधर हमको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से GST-R3B रिपोर्ट्स हमें दिखती है। एनुअल कंप्यूटेशन में जो ईयरली हम रिटर्न फाइल करते हैं, वो हमें एनुअल कंप्यूटेशन में शो होता है। इस तरीके से हम GST एनुअल कंप्यूटेशन रिपोर्ट्स देख सकते हैं। GST रिपोर्ट्स के अंडर में इनवॉइस और ईवे बिल भी आता है। उसमें हमें इनवॉइस जितने भी जनरेट हुए हैं वो हम यहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। जो भी इनवॉइसेस इनवॉइसिंग के लिए पेंडिंग है इनवॉइसेस, वो भी इधर शो करते हैं। और जितने भी करेक्शन चाहिए इनवॉइसेस में, वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ईवे बिल का भी उसमें हम जितने भी इनवॉइसेस है ईवे बिल के, वो इधर देख सकते हैं। जितने भी करेक्शंस करने हैं वो चेक कर सकते हैं। और हमें अगर पर्टिकुलर पीरियड का अगर देखना होगा, तो हम यहाँ पे F2 पीरियड डाल के वो हम जो भी इनवॉइसेस है उस पर्टिकुलर डेट के वो चेक कर सकते हैं। जैसे हम इंटर करेंगे, तो उस डेट में जितने भी ईवे बिल और इनवॉइस है वो जितने भी जनरेट हुए हैं या फिर पेंडिंग है या फिर किसी में करेक्शन करना बाकी है, तो इधर शो हो जाते हैं। रिकंसलेशन में GST-R1 में हम रिकंसलेशन भी कर सकते हैं। इधर हम जो पोर्टल से फाइल डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड करके हम इधर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि इंपोर्ट में जाके हम GST रिटर्न्स में जाके जो भी हमने फाइल डाउनलोड की है पोर्टल से, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसका जो भी इन बुक और ऑन पोर्टल जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, वो हम यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हैं। जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि जो भी जितने भी चीज़ें है वो पोर्टल पे अवेलेबल है, और हमारे टैली में अवेलेबल अगर नहीं होते हैं तो इधर हमें शो करता है। ये GST रिकंसलेशन में जितने भी हम पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, तो वो हम इधर इंपोर्ट करके उसका रिकंसिलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है GST यूटिलिटीज। GST यूटिलिटीज में हम GST रेट सेटअप कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा है जितने भी पार्टी के GST नंबर्स है वो हम यहाँ से अल्टर भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम ऑल लेजर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो जितने भी लेजर्स है वो सब यहाँ पे शो होते हैं। तो उसकी मदद से हम जिसमें भी GST नंबर मेंशन नहीं है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम जो भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो भी हम यहाँ से डेटा फीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट GST रेट सेटअप में भी हम जितना भी हमें जो स्टॉक आइटम्स है, लेजर्स है, ग्रुप्स है, अगर उनका कुछ GST रेट सेटअप करना होगा, तो हम यहाँ पे उस अकॉर्डिंग कमांड देके स्टॉक आइटम होगा तो उसमें हम GST रेट सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू मैम।
Thank you, Payal and Raju, for your knowledge sharing session. So now I request Bhagwati sir to move ahead for the overview of the today's session. Hi. Good evening, everyone. Myself is Bhagwati Dhandaria. So thank you, Anna. So right now, today we are talking about the GST. So this is a multiple time we already done these sessions. Many of the demanded topic because March is nearby. We are in the last quarter of the year, financial year. So many of the smooth is GST compliance. So that's the people's many of the customers demanded these topics. That's why we are doing this session today itself. So in terms of the Tally Prime, जैसा कि आप जानते हैं Tally Prime काफी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफी अपडेशंस आ रहे हैं, काफी लेटेस्ट अपडेट है और एवरी टाइम टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं. तो इसके कारण हमारा काम एवरी कस्टमर है, जो कस्टमर आपका काम काफी आसान हो रहा है, जहाँ पर आप सिंपली आपने जो डेटा एंट्री किया है उनके जो पैरामीटर्स है एक बार आपने अगर अपने अकाउंट्स में सेट कर दिए हैं जीएसटी के, तो आपका टोटल जीएसटी के जो भी कंप्लायंस है लाइक 3B लाइक 3B हो गया, 2A रिकॉन्सिलेशन या जीएसटी के इनवाइस हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट है या आपका ई इनवाइसिंग है या ई बिल है, एवरीथिंग यू कैन डू थ्रू द टैली प्राइम इटसेल्फ, जिससे आपका काम आसान हो जा रहा है, टाइम सेविंग हो रही है, डुप्लीकेसी के वर्क बच रहे हैं. आप पहले इस चीज को एक्सेल में कर रहे थे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहे थे, आपका डुप्लीकेसी का काम हो रहा था, डेटा ह्यूमन एरर हो रहे थे और आपका डेटा कोई प्लेटफॉर्म पर स्मूथ नहीं था. तो आज की डेट में आपका टैली प्राइम में एवरीथिंग होने के कारण आपका पूरा डेटा एक जगह है, डुप्लीकेसी वर्क बच गया, ह्यूमन एरर खत्म हो गया, फास्टर वर्क हो गया, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं और कंप्लायंस को हमेशा अपडेट रखने से आपका पेनाल्टीज एंड दूसरे टाइप के इश्यूज जो होते हैं वो भी आपके सेविंग हो रहे हैं. सो ओवरऑल आइडिया इज कि आप जीएसटी को टैली के थ्रू यूज करें और अपनी टाइम को सेविंग करें. और इस एक्सपर्टीज, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है दैट्स गुड. अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम. दे विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू यूज द जीएसटी इन टैली प्राइम, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे इज टू यूज किया जा सकता है, कैसे आपकी लाइफ को आसान. दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द टुडे सेशन. सो नाउ इट्स ओवर टू यू अंदर. थैंक यू. Okay. Thank you so much, sir, for your time. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media. Thank you all of you for being a part of the today's session. Your active participation is highly valued. We are also looking for your valuable suggestion for the upcoming webinar topics. Looking forward to reconnecting to the next webinar. Thank you, everyone. See you soon.